Hello guys, this is lecture number 19. In this lecture again we are going to solve a problem on balancing of rotating masses. So here I am going to read out the question of the problem. A, B, C and D are four masses carried by a rotating shaft at radius 100, 125, 200 and 150 mm respectively. So here they have given four different masses, okay, that is A, B, C and D, and these four masses are carried by a rotating shaft, and the radius of rotation of these four masses are 100 mm, 125 mm, 200 mm and 150 mm respectively. It means mass A is having radius of rotation as 100 mm, mass B is having radius of rotation as 125 mm, C is having 200 mm and D is having 150 mm. The planes in which the masses revolve are spaced 600 mm apart. So here they have given that the planes in which the masses revolve are spaced 600 mm apart. So here it means these four masses are attached in four different planes. So यहाँ पे प्लेन्स करके मेंशन किया हुआ है, तो इसलिए इसका मतलब है ये चार मासेस है ना, चार अलग अलग प्लेन्स में मासेस अटैच्ड हैं और प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है 600 mm रहेगा. सभी प्लेन्स के बीच में का जो डिस्टेंस है 600 mm रहेगा. ठीक है. नेक्स्ट, द मासेस B, C एंड D आर 10, 5 and 4 kg respectively. So here they have given the mass of B, C and D. Okay, so here mass B is having 10 kg, C is having 5 kg and D is having 4 kg. Next, find the required mass A and the relative angular position of the four masses to keep the shaft in balance. So here we have to calculate the value of mass A, and also we need to calculate the angular position of all the four masses to keep the shaft in balance. So here we need to find out what should be the value of mass A and what are the angles of all these four masses to keep the shaft in balance. So here we will solve this problem. So here, since they have not given the angular position of all the four masses, here we cannot draw the space diagram. The space diagram will be drawn later at the end. So in this problem here, that only I have written here. In this problem, angular positions of masses are not given, so we will draw the space diagram later. तो यहाँ पे एंगल नहीं दिया हुआ है, मासेस के बीच का जो एंगल रहता है वो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसलिए स्पेस डायग्राम निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. तो स्पेस डायग्राम को हम लास्ट में निकालेंगे. तो अभी क्या करेंगे, लाइन डायग्राम, प्लेन्स का डायग्राम निकालेंगे. सो हियर आई हैव शोन दी फोर डिफरेंट मासेस, मास ए, मास बी, मास सी एंड मास डी, एंड दिस इज द शाफ्ट, and all on these shaft, these masses, all these four masses are attached. Okay, and also these four masses are attached in four different planes. So here you can see that mass A is attached in plane A, mass B is attached in plane B, mass C is attached in plane C, mass D is attached in plane D. And here as they have given the distance between the planes, the planes in which the masses revolve are spaced 600 mm apart. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है 600 mm रहेगा, तो वही यहाँ पे शो किया हुआ है. The distance between plane A and plane B will be 600, next B to C will be 600 again, and next C to D again it will be 600 mm. Okay, so this is what the line diagram or plane diagram. So next we have to write the tabular column. So here already have written the tabular column as we written in the previous problems. Okay, so now we shall prepare the tabular column here. So already have prepared the tabular column
this is same as what we did in the previous problems. So first column plane, next column mass, next column radius, next column centrifugal force, next column the reference plane. So here I have taken the reference plane as A. Okay, so here why I have taken A means यूजुअली हम क्या करते थे, लेफ़्ट साइड से सेकेंड प्लेन को रेफरेंस ले देते। आप कोई भी प्लेन रेफरेंस करके ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये लेफ़्ट साइड का ही लेना है, राइट साइड का, ऐसा कुछ नहीं। कौन सा भी प्लेन, ये चारों प्लेन में से कौन सा भी प्लेन आप एक रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर कर सकते हैं। रेफरेंस प्लेन जो भी कंसिडर करते हैं उस प्लेन से ही आपको डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा दूसरे प्लेन्स का वो रेफरेंस प्लेन से डिस्टेंस मेज़र करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यूजुअली मैं क्या करता था, लेफ़्ट साइड से सेकेंड प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन करके कंसिडर करता था। बट जो भी मास जो है ना, जिसका मैं एंगल 0 डिग्री करके कंसिडर किया रहता ना, तो उस मास के प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन नहीं कंसिडर करता, क्योंकि प्रॉब्लम आसान होता है। ठीक है, ऐसे मैं क्यों करता है बोलो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में ईजी होगा। ठीक है, आप अलग अलग प्लेन्स लिए तो आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व होगा ही होगा, थोड़ा लेंदी होगा उतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे यूजुअली मैं क्या करता था, लेफ़्ट साइड से सेकेंड प्लेन को चूज़ करता था। ठीक है, बट अभी इस प्रॉब्लम में और एक आपको इम्पोर्टेंट एक पॉइंट बोला था आपको लास्ट प्रॉब्लम में, जो भी मास आप रेफरेंस मास करके कंसिडर करते हैं, या जो भी मास आप 0 डिग्री पे कंसिडर कर रहे हैं, तो उस मास के प्लेन को आप रेफरेंस प्लेन मत लो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो यहाँ तो वैसे केस में क्या करता हूँ मैं, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ से सेकेंड प्लेन को ही मैं रेफरेंस मास करके कंसिडर किया, या इस मास के प्लेन को मैं 0 डिग्री पे है करके कंसिडर किया बोले तो इस प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन करके नहीं लेता। तो ऐसे केस में क्या करता हूँ, लेफ़्ट साइड पूरा लास्ट लेफ़्ट साइड में जो मास रहता ना, उस मास के प्लेन को मैं रेफरेंस प्लेन करके लेता हूँ। तो यहाँ पे भी ये प्लेन बी, मतलब मास बी को मैं रेफरेंस मास करके लिया हूँ, मतलब इस मास के प्लेन को मैं इसका एंगल जो है 0 डिग्री करके कंसिडर किया हूँ। तो इसलिए प्लेन ए को मैं रेफरेंस प्लेन करके लिया हूँ, क्योंकि प्लेन ए जो है लेफ़्ट साइड में है। तो यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन ए करके लिया हूँ। नेक्स्ट कॉलम में कपल, तो यहाँ पे देखो मासेस, 4 मासेस हैं, अलग अलग 4 मासेस हैं, और ये चारों मासेस हैं अलग अलग प्लेन्स में कनेक्टेड हैं। ये 4 अलग अलग मासेस 4 अलग अलग प्लेन्स में कनेक्टेड हैं। तो जब भी प्रॉब्लम में मासेस जो है अलग अलग प्लेन्स में अटैच्ड है या कनेक्टेड है करके दिया रहता है, तो वहाँ पे आपको कपल भी आएगा, अगर सभी मासेस एक ही प्लेन में आए बोले तो कपल नहीं आएगा, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिटेल बता चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे टैबुलर कॉलम के वैल्यूज़ लिखते जाता हूँ। यहाँ पे देखो प्लेन है, तो यहाँ पे चारों प्लेन लिख देता हूँ मैं, प्लेन ए, प्लेन बी, प्लेन सी, प्लेन डी। ठीक है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर भी ले सकते हैं, आप यहाँ प्लेन लिए तो आपको और भी आसान होगा। नेक्स्ट मासेस, यहाँ पे चारों मासेस लिखता हूँ। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे देखो बी सी डी इन तीनों का ही मास दिया है 10, 5, 4। ए मास ए नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए उसके हिसाब से मास ए ऐसे रख देता हूँ। ओके, मास बी जो है उसका 10 kg है, मास सी जो है 5 kg है, मास डी जो है 4 kg है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ रोटेशन सभी मासेस का दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 100, 125, 200, 150। 100 जो है ए का है, 125 जो है बी का है, 200 जो है सी मास का रेडियस ऑफ रोटेशन है, 150 जो है डी मास का रेडियस ऑफ रोटेशन है। तो वही यहाँ पे लिखा हूँ। आर इज इक्वल टू 100 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है 0.1 मीटर। आर बी जो है 125 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.125 मीटर होगा। आर सी जो है 200 है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.2 मीटर होगा। आर डी जो है 150 mm है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.15 मीटर रहेगा।
तो अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखना है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखने में बहुत ईजी है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को लिखने में बहुत ईजी है। यहाँ पे क्या करना है, मास और रेडियस ऑफ रोटेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। अभी आप मास ए का लिख रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो मास ए का मास इंटू उसका रेडियस ऑफ रोटेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे देखो एम में अननोन वैल्यू है, इसलिए 0.1 इंटू एम ए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट मास बी का रेडियस ऑफ रोटेशन 0.125 और मास जो है 10 kg है, इससे और इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी एम इंटू आर, यहाँ पे एम इंटू आर करना है सभी मासेस के लिए। नेक्स्ट 5 इंटू 0.2 दैट इज 1.0 होगा। नेक्स्ट 4 इंटू 0.15 दैट इज 0.6 मीटर होगा। ओके, 0.6 न्यूटन होगा। सो नेक्स्ट डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन ए। सो सभी प्लेन का जो है डिस्टेंस मेज़र करना है। कहाँ से बोले तो प्लेन ए से डिस्टेंस मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखो पहला प्लेन जो है प्लेन ए है, इसका डिस्टेंस प्लेन ए से, प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए का डिस्टेंस प्लेन ए से 0 रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे 0। प्लेन ए से आप प्लेन ए कैसे मेज़र कर सकते हैं, नहीं मेज़र कर सकते, तो उसका डिस्टेंस होगा 0। नेक्स्ट प्लेन बी यहाँ पे है, नेक्स्ट जो है प्लेन बी है, प्लेन बी का डिस्टेंस प्लेन ए से कितना है, प्लेन ए से प्लेन बी का डिस्टेंस कितना है। यहाँ पे देखो ये प्लेन ए है, ये प्लेन बी है, दोनों का डिस्टेंस है 600 mm, तो वही यहाँ पे लिखा हूँ 600 mm, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 0.6 मीटर होगा। नेक्स्ट आपको सी का, प्लेन सी का डिस्टेंस लिखना है ए से, सी का डिस्टेंस ए से मेज़र करना है। तो यहाँ पे देखो प्लेन ए यहाँ पे है, प्लेन सी यहाँ पे है, तो यहाँ दोनों को यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ 600 है और नेक्स्ट यहाँ से यहाँ 600 है, तो टोटल यहाँ से यहाँ जो है डिस्टेंस होगा 1200 mm, तो 1200 mm यहाँ पे लिखा हूँ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 1.2 मीटर होगा। नेक्स्ट प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से, प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से आपको मेज़र करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो प्लेन ए यहाँ पे, प्लेन डी यहाँ पे, सो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो है 600 प्लस 600 टोटल कितना हुआ 1800 mm हुआ। तो प्लेन डी का डिस्टेंस प्लेन ए से 1800 mm हुआ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो 1.8 मीटर होगा। तो नेक्स्ट कपल लिखना है। कपल लिखने के लिए बहुत ही ईजी, बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हैं, फोर्स इनटू दिस वैल्यू, तो यहाँ पे वो वैल्यू रख दो, सो 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। नेक्स्ट 0.6 इंटू 1.25, सो यू विल गेट 0.75। नेक्स्ट दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, फोर्स और डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 1.2 इंटू 1.0, सो यू विल गेट 1.2। नेक्स्ट 1.8 इंटू 0.6, सो यू विल गेट 1.08। तो ये होगा कपल की वैल्यूज़, ये हो गया फोर्स के वैल्यूज़। तो अभी क्या करना है, कपल पॉलीगॉन और फोर्स पॉलीगॉन निकालना है। तो यहाँ पे देखो पहले फोर्स पॉलीगॉन निकालेंगे या कपल पॉलीगॉन निकालेंगे, तो यूजुअली हम कपल पॉलीगॉन निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि कपल पॉलीगॉन कॉलम में अननोन वैल्यूज़ कम रहते हैं, इसलिए हम पहले कपल पॉलीगॉन को निकालते हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, इन दोनों कॉलम में कपल पॉलीगॉन के कॉलम में कौन से भी अननोन वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पे देखो फोर्स के कॉलम में एक अननोन वैल्यू है, तो इसलिए हम पहले कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे, क्योंकि कपल के कॉलम में कौन सा भी वैल्यू अननोन नहीं है। यहाँ पे देखो फोर्स में एक अननोन वैल्यू है, तो इसलिए पहले कपल पॉलीगॉन को निकालेंगे। तो यहाँ पे अभी कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो मास बी को मैं रेफरेंस मास करके कंसिडर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि और यहाँ पे उसका मास बी का जो है एंगल जो है 0 डिग्री करके कंसिडर करता हूँ, क्योंकि कौन से तो एक मास का यहाँ पे आप 0 डिग्री करके कंसिडर करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको डायग्राम नहीं निकलेगा। 0 डिग्री मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, कौन से भी एक मास का आपको लाइन जो है कपल पॉलीगॉन डायग्राम में लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप मास ए ले सकते हैं, मास बी ले सकते हैं, मास सी ले सकते हैं, मास डी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कपल के कॉलम में यहाँ पे देखो ए का वैल्यू 0 है,
मास ए का कपल का वैल्यू 0 है, मास बी का 0.75 है। तो यहाँ से हमारा डायग्राम शुरू होगा। तो इसलिए मैं इस मास बी को जो है नी मैं रेफरेंस मास करके कंसिडर करता हूँ। मतलब इस मास को मैं हॉरिजॉन्टल लाइन निकालने वाला हूँ। मतलब इस मास का जो एंगल जो है 0 डिग्री करके कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी कपल पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए ये कपल के वैल्यूज देखेंगे। ये जो है 0 है, फर्स्ट वाला मास ए का जो कपल जो है 0 है, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट मास बी का जो कपल का वैल्यू है 0.75 है, नेक्स्ट 1.2 है, नेक्स्ट 1.08 है। तो ये वैल्यूज़ देख के आपको स्केल सेट करना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज़ देख के मैं स्केल सेट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्केल क्या सेट करता हूँ, स्केल जो है 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लेता हूँ। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखो पहला वैल्यू जो है 0 है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे देखो 0.75 है, 0.75 न्यूटन मीटर है। तो इसको स्केल में कन्वर्ट करो। तो हम क्या कह रहे हैं, स्केल यहाँ पे 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। तो 0.75 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीमीटर्स। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, और 0.75 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू कितने सेंटीमीटर होगा। तो इसे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई, ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो, और जो नंबर्स कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो। ये जो क्वेश्चन मार्क के साथ कनेक्टेड है ये नंबर मतलब 1, इसको डिनोमिनेटर में लिखो, और जो नंबर्स कनेक्टेड हैं इसको न्यूमरेटर में लिखो। 0.75 इंटू 5, तो ये कैलकुलेट करो तो आपको यहाँ पे कितना सेंटीमीटर लाइन बनाना है मालूम पड़ेगा। तो यहाँ पे 3.75 सेंटीमीटर्स 3.75 सेंटीमीटर्स लाइन बनाना है। ठीक है, ये लाइन जो है मास बी का लाइन बनाना है, और यहाँ मास बी को हम रेफरेंस मास करके कंसिडर किया है। तो इसका एंगल रहेगा 0, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। 3.7 जो है आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालना है। यहाँ पे देखो 0.75 जो वैल्यू है पॉजिटिव है। तो यूजुअली जो पॉजिटिव वैल्यूज़ रहते हैं उस लाइन्स उन वैल्यूज़ को हम उन वैल्यूज़ का लाइन जो है हम लेफ़्ट टू राइट ही निकालते हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो ये लेफ़्ट हुआ, ये राइट, तो इसका डायरेक्शन ऐसे। अभी देखो नेक्स्ट वैल्यू है 1.2। ये 1.2 जो है मास सी का वैल्यू है। मास सी का वैल्यू जो है 1.2 है, मगर पहले इसको स्केल में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इस 1.2 को स्केल में कन्वर्ट करेंगे। हम क्या स्केल सेट किए, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लें। तो पहले 1.2 न्यूटन मीटर को स्केल में कन्वर्ट करो। तो यहाँ पे देखो ये जो है ऐसे एरो मार्क्स डालो, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड उसको डिनोमिनेटर में लिखो, और जो नंबर्स कनेक्टेड है उसको न्यूमरेटर में लिखो। 1.2 इंटू 5, सो 1.2 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो आपको मिलेगा 6 सेंटीमीटर। ये जो लाइन रहेगा मास सी का रहेगा। ये जो 1.2 है ना, ये मास सी का रहेगा। बट यहाँ पे मास सी का जो है एंगल हमको मालूम नहीं है। मास सी का एंगल हमको मालूम नहीं है। ठीक है, मास सी का एंगल मालूम नहीं है बोले तो क्या करना है अभी, मगर यहाँ पे मास सी जो है ना इस पॉइंट से निकालना है। ये मास सी जो है इस पॉइंट से निकालना है। डिस्टेंस मालूम है हमको, एंगल मालूम नहीं। ठीक है, डिस्टेंस मालूम है, एंगल मालूम है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको इस पॉइंट से ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर का एक आर्क निकालना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको कंपास यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो ये 6 सेंटीमीटर आप इसको स्केल में कंपास को सेट कीजिए। तो इस पॉइंट से आपको मास सी निकालना है। तो इस पॉइंट से आप 6 सेंटीमीटर का आर्क निकालो। ठीक है,
नेक्स्ट वैल्यू जो है 1.08 है। तो 1.08 जो है ये मास डी का है। तो इस पहले इसको स्केल में कन्वर्ट करो 1.08 को। 1.08 कितना सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पे देखो ये 1 जो क्वेश्चन मार्क के साथ कनेक्टेड है, इसको डिनोमिनेटर में लिखो, ठीक है। नेक्स्ट ये नंबर्स जो कनेक्टेड है ऊपर लिखो न्यूमरेटर में। 1.08 इंटू 5 इज इक्वल टू 1.08 इंटू 5 इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर्स। 5.4 सेंटीमीटर्स। ये जो लाइन है मास डी का रहेगा, मास डी का रहेगा। ये जो मास है लास्ट मास है एक्चुअली। ये जो मास डी जो है, मास डी का जो कपल पॉलीगॉन डायग्राम जो है, मतलब 5.4 सेंटीमीटर लाइन जो है, यहाँ से एक लाइन निकले रहता ना इस पॉइंट से, वो लाइन पे से निकलता है, ठीक है। बट यहाँ पे लाइन नहीं है, यहाँ पे लाइन नहीं है, तो ये लास्ट मास है। डी जो है लास्ट मास है, तो ये लास्ट मास जो है एंड यहाँ पे होगा, एंड जो है वो पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ओ पॉइंट से 5.4 सेंटीमीटर को लाइन निकालेंगे। वो पॉइंट से 5.4 सेंटीमीटर सेट करके एक आर्क निकालेंगे। ये इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, आप वहाँ पे अभी क्या करना है, ये पॉइंट जो है बी रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको लाइंस निकालना ऐसे। ये जो लाइन है ए टू बी लाइन जो है 1.2 सेंटीमीटर 1.2 का है, 1.2 का लाइन है, तो इसको 1.2 करके लिख दो। ये जो लाइन है ये वाला है 0.75, तो इसको 0.75 करके लिख दो। नेक्स्ट B2 O ज्वाइन करो, B2 O ज्वाइन करो। ये लाइन जो है मास डी का है, मास डी का 1.08 उसका लाइन है। तो यहाँ पे देखो 1.08। तो ये यहाँ पे आपको मास, ये लाइन जो है 1.2 जो है मास सी का है, तो इसका मास सी का एंगल मिल जाएगा। मास सी का एंगल मेज़र कर, ये लाइन जो है मास सी का लाइन है। तो यहाँ पे क्या करो, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो राइट साइड में, ठीक है। वो स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन से आप एंगल जो है लेफ़्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करो। इस मॉड्यूल में आप सभी एंगल जो एंटी क्लॉकवाइज में ही मेज़र करेंगे। तो इसका एंगल हुआ 118, ओके। तो इसका एंगल हुआ, यहाँ पे देखो ये मास सी का जो एंगल रहेगा 118, ओके। अभी ये लाइन जो है मास डी का है, क्योंकि 1.08 ये लाइन जो है मास डी का है, 1.08 जो है मास डी का है। तो ये लाइन जो है मास डी का है। तो इसका एंगल मेज़र करने के लिए यहाँ पे बी पॉइंट पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालो, परफेक्ट स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन रेफरेंस के लिए, स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से आपको एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मेज़र करना है। तो 180 हुआ। नेक्स्ट 180 प्लस 81, 180 प्लस 81, तो 161 एंगल होगा। तो ये 261, 180 प्लस 81 इज इक्वल टू 261 डिग्रीज, 261 डिग्रीज रहेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल्स हैं, यहाँ पे देखो एंगुलर पोजीशन ऑफ एंगल ऑफ मास सी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल ऑफ मास सी इज इक्वल टू 118 डिग्रीज। नेक्स्ट एंगल ऑफ मास डी इज इक्वल टू 261 डिग्रीज, ओके। ये हो गया कपल पॉलीगॉन। नेक्स्ट आपको फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम
ओके, फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालने के लिए अगेन आपको स्केल सेट करना है। तो यहाँ पे स्केल सेट करने के लिए ये वैल्यूज़ देखना है, ये वैल्यूज़ यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वाला अननोन है, नेक्स्ट जो 1.25 1 है, नेक्स्ट 0.6 है, ये वैल्यूज़ देके आपको स्केल सेट करना है। तो अगेन आई विल टेक द स्केल एज 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर्स, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। नेक्स्ट जो है फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालेंगे। यहाँ पे देखो फोर्स पॉलीगॉन, तो फर्स्ट जो वैल्यू है ये अननोन है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट वैल्यू जो है 1.25 है। सो 1.25 को आप पहले स्केल में कन्वर्ट करो। 1.25 न्यूटन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इसे ऐसे एरो मार्क्स डालो, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड, इसको डिनोमिनेटर में लिखो, ये जो वैल्यूज़ है इसको न्यूमरेटर में लिखो, 1.25 इंटू 5। सो यहाँ पे कैलकुलेट करो, 1.25 इंटू 5 सो इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर लाइन बनेगा। सो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 सेंटीमीटर लाइन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 1.25 इसका लाइन जो ये जो वैल्यू है मास बी का है, ठीक है। ये वैल्यू जो है मास बी का है। यहाँ पे देखो अभी आपको 6.2 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, और वो लाइन जो है यहाँ पे देखो मास बी, ये जो लाइन है मास बी का लाइन है, तो इसका पैरेलल बनाना है। इस लाइन का पैरेलल 6.2 सेंटीमीटर लाइन यहाँ पे बनाना है, क्योंकि ये लाइन जो है मास बी का लाइन है। तो मास बी को यहाँ पे भी आपको मास बी को जो है 0 एंगल पे निकालना है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पे निकालना है। ये मास बी का लाइन है, तो इसका पैरेलल बोले तो अगेन परफेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर लाइन निकालना है, ओके। यहाँ पे 6.2 सेंटीमीटर का लाइन बना दिया, तो ये हुआ 0। ये जो डायरेक्शन में वही डायरेक्शन निकालना है पैरेलल, क्योंकि यहाँ पे 1.25 न्यूटन जो है पॉजिटिव है, ठीक है। 0 टू ये मतलब ये हॉरिजॉन्टल परफेक्ट हॉरिजॉन्टल बोले तो इसका पैरेलल होगा। नेक्स्ट मास जो है एंगल मास सी है, तो इसका वैल्यू है 1 बोले तो इसको स्केल में कन्वर्ट करना है। 1 यहाँ पे देखो 1 न्यूटन को तो 5 सेंटीमीटर ले, तो स्केल कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 न्यूटन बोले तो 5 सेंटीमीटर, तो नेक्स्ट जो है 5 सेंटीमीटर का लाइन निकाल देंगे। 5 सेंटीमीटर का लाइन इस पॉइंट से निकालेंगे, और वो लाइन जो है मास सी का है, और यहाँ पे मास सी का एंगल हमको मालूम हुआ है 180 डिग्रीज, ठीक है। मतलब इसका पैरेलल निकालना है। इस पॉइंट से ये लाइन जो है मास सी का है, इसका पैरेलल निकालना है, और कितना सेंटीमीटर निकालना है, 5 सेंटीमीटर निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स का वैल्यू सी का फोर्स का वैल्यू 1 है, तो 1 न्यूटन बोले तो 5 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट से मैं 5 सेंटीमीटर लाइन निकालूंगा, और जो है इसका पैरेलल निकालना है, तो इसका पैरेलल निकालने के लिए यहाँ पे देखो ये लाइन जो है ये राइट साइड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 118 डिग्रीज एंगल बना हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। नेक्स्ट फोर्स की वैल्यू जो है 1 है। अभी नेक्स्ट हमको क्या करना है, मास सी का फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे देखो इसका वैल्यू है 1 है। 1 बोले तो 1 न्यूटन बोले तो 5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी हम स्केल सेट किए चुके हैं। यहाँ पे देखो 1 न्यूटन को 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे भी जो है वैल्यू है 1 है, ठीक है। तो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लाइन निकालना है, और वो लाइन जो है ये यहाँ पे देखो A to B, ये लाइन जो है मास C को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका पैरेलल निकालना है। ये लाइन का
ए टू बी का लाइन पैरेलल निकालना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यह हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन है राइट साइड में, इसके साथ 118 डिग्रीज एंगल बना है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकाला हूँ। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में 118 डिग्रीज को मेज़र करो। तो यहाँ पे हो गया मार्क। तो यहाँ वहाँ 5 सेंटीमीटर मेज़र करो। ये होगा 5 सेंटीमीटर लाइन। तो ये लाइन जो है, ये लाइन जो है मास सी का है, मतलब मास सी का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 न्यूटन है, 1 न्यूटन है। और ये लाइन जो 1.0 या 1 लिखो, ये जो है 1.25 का लाइन है। नेक्स्ट इस पॉइंट से मास डी का फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम निकालना है। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट मास जो है मास डी का है, दैट इज़ 0.6 है। तो 0.6 को पहले आप स्केल में कन्वर्ट कीजिए। तो यहाँ पे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले, तो 0.6 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आरो मार्क्स डालो ऐसे ऐसे, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कनेक्टेड है उसको डिनोमिनेटर में लिखो और नंबर्स को आप ऊपर लिखो 0.6 इंटू 5। सो यहाँ पे 0.6 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 करो, 0.6 इंटू 5 3 सेंटीमीटर का लाइन बनेगा। इस पॉइंट से आपको 3 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है। बट वो लाइन जो है, ये लाइन जो है मास डी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए इसका पैरेलल बनाना है। तो यहाँ पे देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये लाइन जो है 261 डिग्रीज पे है एंटी क्लॉकवाइज में। तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। यहाँ पे एक स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से एंटी क्लॉकवाइज में 261 डिग्रीज मेज़र करो। सो यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ। नेक्स्ट जो है 180 प्लस 81, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का लाइन निकालो। तो ये लाइन जो ये पॉइंट ऐसे डायरेक्शन रहेगा, ये पॉइंट रहेगा बी, या और ये लाइन जो है 0.6 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस टैबुलर कॉलम में देखो, यहाँ पे सभी वैल्यूज़ ख़त्म हो गए। नेक्स्ट अभी सभी वैल्यूज़ ख़त्म हो गए तो आपको ये फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम को क्लोज करना पड़ेगा। फोर्स क्लोज मतलब ये पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट को ज्वाइन कर दो डॉटेड लाइन से। ये हो गया आपका फोर्स पॉलीगॉन डायग्राम। और यहाँ पे देखो ये फोर्स के कॉलम में फर्स्ट वैल्यू जो है अननोन है, यहाँ पे एम ए जो है अननोन है। तो ये डॉटेड लाइन जो है उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0.1 एम ए, ठीक है। और इस लाइन का जो एंगल निकलेगा वो जो है मास ए का एंगल रहेगा, क्योंकि मास ए का वैल्यू है। तो इसका जो एंगल निकलेगा वो मास ए का एंगल निकलेगा। तो पहले मास ए का एंगल मेज़र करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं स्मॉल इस पॉइंट को सी करके लेता हूँ, यहाँ पे स्मॉल हॉरिजॉन्टल लाइन निकालता हूँ सी पॉइंट पे रेफरेंस के लिए, और एंटी क्लॉकवाइज में मेज़र करता हूँ एंगल को। यहाँ से 180 हुआ। नेक्स्ट जो है 180 प्लस 25, 180 प्लस 25 बोले तो 205 डिग्रीज रहेगा। 200, तो ये जो है 205 एंगल ऑफ
मास ए इज 205 डिग्रीज रहेगा। ठीक है, बुक का वैल्यू जो है 203 डिग्रीज है। तो अभी क्या करना है, ये एम ए वैल्यू फाइंड करना है। तो एम ए वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले आपको ओ सी का वैल्यू फाइंड करना है। ओ सी का लाइन डिस्टेंस, ओ सी का डिस्टेंस मेज़र करना है। यहाँ पे देखो ओ सी का डिस्टेंस जो है मेज़र करना है। ओ सी का जो डिस्टेंस है 3.8 है। यहाँ पे देखो ओ सी का डिस्टेंस जो है 3.8 है, 3.8 सेंटीमीटर। तो इसको, इस वैल्यू को जो है 0.1 एम ए को इक्वेट करना है। सो 0.1 एम ए इज इक्वल टू ओ सी इंटू स्केल। हाँ, ये जो 3.8 सेंटीमीटर है इसको स्केल में कन्वर्ट करना है वापस ओरिजिनल वैल्यू में। तो 0.1 एम ए, ओ सी का वैल्यू जो है 3.8 इंटू स्केल। स्केल बोले तो ये 5 को लेफ्ट साइड में लो तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 0.1 एम ए 3.8 डिवाइडेड बाई 5, 3.8 डिवाइडेड बाई 5 is 0.76. So MA is equal to 76 divided by 0.1. So MA is equal to 7.6 kg. So ये होगा आपका MA का वैल्यू। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सभी वैल्यूज यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है। तो मास ऑफ A दैट इज़ एम ए, सभी वैल्यूज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। 7.6 kg है। नेक्स्ट एंगुलर पोजीशन ऑफ मास ए दैट इज एम ए, मास ए दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 205 डिग्रीज। नेक्स्ट थर्ड वन, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास बी, ये भी आप यहाँ पे फाइंड किए आप, यानी मास सी। बी तो हम 0 डिग्री करके कंसिडर किया ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही। सी जो है 118 डिग्रीज है। नेक्स्ट मास, एंगुलर पोजीशन ऑफ मास डी, ये जो यहाँ पे फाइंड किए 261 डिग्रीज। सो ये होगा आपका प्रॉब्लम। थैंक यू।